the list and its methods. So some of the methods in a list are, देखो कुछ methods जो है, हाँ ये that is ये some सर of the कल वाला methods वीडियो है. अपलोड कर दिए सर? हाँ बोलो. कल वाला वीडियो सर? हाँ कल वाला सर कल वाला वीडियो। सेंड कर दिए हैं, यूट्यूब में है, तुम लोग को लिंक भेज दिए, ठीक है ना. देख लोगे, देखे नहीं हो तो देख लोगे, और नहीं मिला होगा तो हमको फिर से बताना. सो सम ऑफ द मेथड्स इन लिस्ट आर, दीज आर द मेथड्स. इसको हम एक जगह से डाउनलोड करके रखें. लिस्ट append method is there, extend method is there, insert method is there, remove method is there, list index method is there, है ना, clear method is there, pops, and then list index अलग से एक है, और लिस्ट का इंडेक्स ये तो हम लोग कर ही रहे थे. शॉर्ट है, रिवर्स है, लेंथ है, मैक्स है, मिनिमम है, और लिस्ट सीक्वेंसेस. तो दीज आर द सम ऑफ द बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिस्ट का मेथड्स है वो यहीं पर दिया हुआ था हमारा बुक में. जो बुक कहाँ था, ये बुक है ना पीडीएफ में, ये है मेथड्स. तो दीज आर द मेथड्स विल लर्न, ठीक है ना. नाउ बिफोर गोइंग टू द लिस्ट मेथड्स, these are the methods, all these methods we will learn one by one. And before going to the list methods, we will learn first how to access the list elements using loops. How to access the list elements or list and loop. तो इसको हम लोग समझेंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे. So देखो, you can access the list through loops also. So how we can do that? Suppose one list is there L, and I want to print that all the contents of the list. Then you can write for I in list. Nothing, list means यहाँ पर हो गया I in L, name of the list, and print I. So how it will print? You can see it. देखो सारे print कर दिया ना. So in this way, list, if you are giving in a loop the name of the list, then that all the elements of the list will be available there. ठीक है ना, समझ में आया? So list element can be accessed by loop, through loop. You have to write that like that this is the example, that in the for loop I am giving the L list name. L is the name of the list, L is the name of the list, and print I. So print I means print the element, and the how it is executing actually. So whatever the elements of the list, these are the elements of the list, these are the elements of list. Now all the elements can be accessed one by one, and each element is stored one by one in the I. You can write here anything like the I, X, B, yeah, you can write ELM element, whatever your choice is there, you can write the name there, and as per the list contents it will display. So whatever
as per your choice, whatever name you want to give, you can give. So all the contents are there. These are the contents are there. So now you have learned how the list element can be accessed through loop also, directly through loop also. You can write like this also. सपोज हमको केवल वन एलिमेंट ही चाहिए, या आप कुछ स्टेप्स वगैरह भी लिख सकते हो, तो यू कैन राइट स्टेप्स ऑल्सो देयर. जैसे यहाँ ना स्टेप्स वगैरह भी लिख सकते हो, इंडेक्सिंग पर्टिकुलर इंडेक्स में भी लिख सकते हो. तो इन दिस वे यू कैन एक्सेस एनीथिंग देयर. Now today's class is for the list methods. We will learn the list methods. So these are the some of the list methods, and we'll check each and every methods one by one. So first is the list append method. So this method adds one element at the end of the list. So the definition is there, add an element at the end of the list. So जब भी append का मतलब होता है जोड़ना, append केस में जब भी जोड़ते हैं तो it is added at the end. It cannot be added in the beginning, it cannot be added in the middle. If you want to add in the middle, or you want to add in the beginning, if you want to add more than one element, then you can use other function, but append function is used to add at the end of the list, and it adds one index value there. If the length of the list is suppose 5, and if you are using append function, then that will be added in the 6th position of the index of the list. So we'll learn these things. So we have to make a list, we have to create a list. Suppose the list elements are like month, and it is like January, February, March. You can take any of the list examples. Suppose these are the only things I have stored there, and now we can do this types of program in the cell itself better. You are knowing that in Pythons can be executed two ways. The Python programs can be executed by directly writing in the cell, and you can use the editor, edit any of the editor, or doing the coding. So sometimes if you are you want to check something, one statement, two statements, then it is better to write in cell. So where I have to use the cell there. No, this is not the cell, this is the editor. Now this is the cell. Now I will write whatever so print in cell. There is a problem that you cannot go upward direction, or you cannot move the commands there. So I am writing here. So suppose one list is there, I have to again store some list there. So I am storing just 1 2 3 4. Okay, and now if I am writing l dot
append, I have to check the and append 6 there and execute the program, and you can see that 6 is added there. So append function is used to add an element. You can you can see it. Now the next function is extend. How you can extend a set of elements there? कैसे extend करोगे, ठीक है ना? So next function is the extend function. तो extend function एक साथ एक से अधिक एलिमेंट को ऐड कर सकता है. ऐड इसमें भी एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है ना? तो एक्सटेंड हम दिखाते हैं, एक्सटेंड का एग्जांपल. ठीक है, चलो इसी से एग्जांपल लेके जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बहुत तरह का एक्सटेंड कर सकते हो, तो एक्सटेंड कर देते हैं. एक्सटेंड का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है ना? तो एल डॉट मान लो L1 एक की है, इक्वल टू कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है ना? अब लिख रहे हैं एल डॉट एक्सटेंड. दोनों में अंतर है कि एक से अधिक एलिमेंट को कर सकता है और एक केवल. तो अब एल लिखोगे तो क्या देगा? बाकी एलिमेंट जो भी स्टोर किया था. अब देखो ये एल डॉट एक्सटेंड डायरेक्ट हम स्टोर करते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं, ये देख लो. डायरेक्ट ये नहीं ले रहा, इसके लिखने का तरीका, ठीक है ना? तो एक्सटेंड फंक्शन यू कैन ऐड ए लिस्ट देयर एट द एंड. ऐसे दूसरे फंक्शन से भी ये बन जाता है. नेक्स्ट है मेरा इंसर्ट. इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस ये है कि इंसर्ट यू कैन ऐड एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू. किसी एक जगह इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना? तो देखो इंसर्ट का क्या एग्जांपल दिया हुआ है. ज़्यादा इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. पॉप वगैरह है, रिमूव, रिवर्स, लेंथ. अच्छा, इंसर्ट फंक्शन इसमें पढ़ाया ही नहीं है, छोड़ दिया. देखो एक प्रॉब्लम होता है किसी किसी बुक में, और इंसर्ट फंक्शन इसमें भी है. एक इंसर्ट फंक्शन है, इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं. बाद में हम लोग आएगा तो दिखाएंगे, है ना? सो इंसर्ट फंक्शन कुछ दिया है एग्जांपल, इंसर्ट का दिया है एक एग्जांपल, ठीक है ना? देखो इंसर्ट फंक्शन का समझा देते हैं आज जल्दी जल्दी. कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉजिक वगैरह यूज़ करना नहीं है. इंसर्ट समझा दे रहे हैं तुरंत. मान लो 3 पोजीशन में कुछ ले लेते हैं, स्टोर करते हैं, है ना? ओहो, डॉट नहीं लिखे, सॉरी. तो ये इंसर्ट हो गया. थर्ड पोजीशन में देखो 0 0 1 2 3. थर्ड पोजीशन में इंसर्ट हो गया, ठीक है ना? समझ सुन रहे हो ना तुम लोग सब? कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना. बहुत डिफ़िकल्ट ये सब नहीं है, इसलिए जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको आज ही. फिर कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट में जाएंगे हम. इंसर्ट के बाद क्या है? पॉप वगैरह है, कुछ फंक्शंस हैं. एंड देन वी हैव वन एक्सटेंड है. पॉप कर लेते हैं पहले.
एक्सटेंड भी करेंगे, अपेंड कर लिए हैं, एक्सटेंड तो हो गया ना, एक्सटेंड तो हो गया। पॉप पॉप करते हैं, पॉप मतलब रिमूव करना, इट रिमूव्स वन एलिमेंट फ्रॉम देयर, इट रिमूव्स वन एलिमेंट फ्रॉम द, मान लो लिखते हैं एल डॉट पॉप। अब एल अगर प्रिंट करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट हमारा हटा देगा। जैसे अपेंड जोड़ता है एक एलिमेंट, और पॉप just opposite of that, it removes an element. And insert is also for adding element, but elements can be added in any position, any position insert से। तो पहला इंडेक्स वैल्यू देते हैं, इसमें यहाँ जो है ये पहला इंडेक्स वैल्यू है, दूसरा वैल्यू है, एलिमेंट का वैल्यू। अभी दूसरा जो फंक्शन है पॉप है, डेल है ना, डेल तो रिमूव करता है। डेल और पॉप में अंतर है कि डेल किसी पर्टिकुलर पोजीशन का वैल्यू स्टोर डिलीट कर सकता है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे पॉप क्या कर रहा था, पॉप रिमूव कर रहा था ओनली द लास्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, बट इंसर्ट कैन रिमूव द that is the delete can remove the any position from any position. So delete, मान लो हमको डिलीट करना है एल का थर्ड पोजीशन, तो ये ओहो ऐसा लिखाएगा, गलती लिख दिए, एल डिलीट एल, इंडेक्स वैल्यू देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, आई लिख दिए थे, कभी कभी गड़बड़ बहुत हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो थर्ड पोजीशन में क्या था, 3 था, 3 रिमूव हो गया होगा, तो देखो 3 रिमूव हो गया। सो देखो फिर से एक बार बताते हैं, अपेंड इज यूज फॉर एडिंग एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड एक्सटेंड इज यूज टू एड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, and insert is used क्या था ना, insert is used to add any element in any position of the list, and pop is used to remove element from the last, and del is used to remove an element at a particular position from any position of the list, whatever the index value you given at the in the statement, as per the index value it can remove the value। अबे हम लोग का दूसरा क्या फंक्शन दिया हुआ देखते हैं, पॉप हो गया, एक्सटेंड हो गया, रिमूव हो गया, ये सब बहुत आसान है। डेल किए ना, अब रिमूव ने डेल कर दिए, रिमूव एक फंक्शन है ना, तो रिमूव फंक्शन देखो, डेल और रिमूव फंक्शन में बेसिक डिफरेंस है, दैट यू कैन थ्रू डेल फंक्शन यू कैन डिलीट by giving the index value of the list, but if you are not knowing the index value, then also it can be deleted by using the remove function. You just give the value of that element, उस जो भी इंडेक्स है उसका वैल्यू दे दोगे ना, इंडेक्स में जो स्टोर है या लिस्ट में जो स्टोर है उसका वैल्यू दोगे। तो अब लिखते हैं रिमूव फंक्शन, तो रिमूव
देखो दो तीन तरह का फंक्शन लिखने का थोड़ा थोड़ा पाइथन में होता है। किसी किसी जगह में जो है ना फंक्शन कमांड की तरह लिखते हैं, और किसी किसी जगह में फंक्शन है। दिस इज एक्चुअली कमांड। तो इसका क्या डिफरेंस हम समझाएंगे। अभी जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं फंक्शन का लिस्ट का, ये है ना। तो एल डॉट रिमूव, किसी चीज़ को रिमूव करते हैं, मान लो 5 को रिमूव करना, एल डॉट रिमूव, है ना। रिमूव कर दो, इसको प्रिंट करो, 5 रिमूव हो गया, ठीक है ना। अब क्या फंक्शन दिया है हमको देख लेते हैं। रिमूव हो गया, पॉप हो गया, डेल, पॉप और रिमूव में फिर से डिफरेंस समझा देते हैं, कंफ्यूजिंग है। पॉप क्लियर है कि एंड से रिमूव करता है। डेल किसी इंडेक्स पोजीशन में इंडेक्स वैल्यू देने से उस इंडेक्स वैल्यू का एलिमेंट को रिमूव कर देता है। रिमूव फंक्शन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का वैल्यू देने से उस एलिमेंट को लिस्ट से हटा देता है या रिमूव कर देता है। अब दो फंक्शन है, दो तीन फंक्शन है, दैट इज इंसर्ट, सॉर्ट, रिवर्स और लेंथ। तो इंसर्ट ऐड करने के लिए है, अपेंड भी ऐड कर रहा था, एक्सटेंड भी ऐड कर रहा था, और इंसर्ट भी ऐड करेगा। तो इंसर्ट कैसे ऐड करेगा ये बता देते हैं। इट एड्स एट ए पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है ना। इट एड्स एट ए पर्टिकुलर, तो अलग अलग कामों के लिए है। तो पर्टिकुलर पोजीशन को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास मान लो एल डॉट इंसर्ट 3 पोजीशन में हम इंसर्ट करना चाहे, कुछ वैल्यू दे देते हैं। अब एल लिखो, तो देखो थर्ड पोजीशन में क्या था, 23, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 पोजीशन है, 1 2 थर्ड पोजीशन में मेरा 23 ऐड हो गया, ठीक है। सो इट एड्स ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए पर्टिकुलर पोजीशन और पर्टिकुलर इंडेक्स। अब क्या है, दूसरा एक फंक्शन है तुम्हारा सॉर्ट है। सॉर्ट करोगे तो सॉर्टिंग कर देगा, अरेंज कर देगा। और सॉर्टेड एक दूसरा फंक्शन है। सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस अभी समझा देते हैं क्लियर। लेंथ भी एक फंक्शन है, एक रिवर्स फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहले सॉर्ट फंक्शन पढ़ लेते हैं। सॉर्ट का मतलब समझ रहे हो, इट अरेंज द रिकॉर्ड्स, एल डॉट सॉर्ट। तो अरेंज बाय, अब एल लिखोगे तो हो गया सॉर्ट एलिमेंट, अरेंज कर दिया, इट अरेंज इन, है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कभी रिवर्स, इसका ऑर्डर इजगल टू फॉल्स या ट्रू लिखा जाता है। ये बहुत कम दिया है एक्चुअली। चलो यहाँ पर केवल थोड़ा सा ये दे दिया है, लिस्ट का अलग से क्लास अलग से करवाया है, ठीक है ना। तो शॉर्ट हो गया। रिवर्स में उल्टा तरफ से प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। लिस्ट को उल्टा तरफ से प्रिंट कर देगा। और कुछ फंक्शन बचा क्या। इंडेक्स फंक्शन में पर्टिकुलर इंडेक्स देता है। इंडेक्स देता है। रिवर्स हो गया। मैक्स मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम एक है। मैक्सिमम और मिनिमम बता देते हैं। सो एल डॉट मैक्स, ये मैक्स एल था क्या। इसका सिंटैक्स लिखने का थोड़ा सा अलग तरीका है ना।
तो मैक्स एल हो गया और इसी तरह मीन एल होगा। एंड और एक क्या बच गया, रिवर्स तो कर ही लोगे, एल डॉट रिवर्स REVERSE। अब एल प्रिंट करो, उल्टा प्रिंट करने लगा ये। रिवर्स मतलब ये सॉर्टिंग नहीं करेगा, उल्टा तरफ से प्रिंट करेगा। जैसे हम लोग बनाए थे ना एक प्रोग्राम, that is the converting the digits to the word, and there the one problem is that you cannot print it in the रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा था। जो फर्स्ट लेटर था वो पहले आ जा रहा था, फर्स्ट जो डिजिट था वो पहले वर्ड में आ जा रहा था, इन दिस वे। तो ये रिवर्स फंक्शन को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो कुछ बचा नहीं फंक्शन, सब फंक्शन यहाँ से भी हो गया और वहाँ से भी हो गया। लेंथ फंक्शन बहुत ईजी है। तो लेंथ फंक्शन क्या है, एल डॉट और इसका लेंथ लिख के लिखते हैं ना, तो गलती उस दिन लिख रहे थे हम। तो कितना हो गया इसका, 7 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑल these are the functions available in the list. Other functions are also there, but these are the basic functions which is available in the list. If you have some question then you can put it. And question हम देखते हैं, कुछ हमारे बुक में क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। डिक्शनरीज पढ़ेंगे, फिर टपल्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी मेथड्स भी कुछ हैं। नेक्स्ट क्लास में होगा डिक्शनरी और टपल में भी कुछ मेथड्स हैं, है ना। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो ये जो है क्वेश्चन नहीं है क्या अनिश? नहीं सर, अभी हुआ नहीं है सर। हैं? क्वेश्चन अभी सर नहीं ठीक से हुआ। हाँ वो मतलब ये लिस्ट वाला में और जो फंक्शंस है, जनरल फंक्शंस था, खाली डिस्कशन कर लिए फटाफट। जो फंक्शंस था उसको याद रखना होगा, यूज कैसे करना है वो याद रखना होगा, है ना। तो लिस्ट का फंक्शंस को हम लोग पढ़ लिए। अभी अगर इसमें क्वेश्चंस तो ज़्यादा बनेगा नहीं, तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 2-3 चीज़ आज हम लोग पढ़ें, जैसे फॉर लूप में कैसे लिस्ट को यूज़ करना है, और सारे लिस्ट के मेथड्स को पढ़ें उसका प्रैक्टिकल के साथ। अभी तुमको कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं। जैसे है राइट द फॉर स्टेटमेंट में प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। ये दिख रहा है इंडिया जो क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है यहाँ। इसको बना सकते हो तुम लोग कोई? हाँ जी, यस सर। वाह वेरी गुड। तो कौन बनाएगा, अनिश या रमन, कौन बोल रहा था? सर रमन। हाँ तो रमन बना, तुमको हम होस्ट बनाते हैं। फटाक से बना के हमको दिखा दो, और नहीं तो हम तो आधा मिनट में इसको बना देंगे। सर ऐसे ही बोल देते हैं सर, 2 ये लाइन तुम का तो होस्ट है। बन गया तुम्हारा। किस में कर रहे हो, मोबाइल में कर रहे हो? सर मोबाइल से क्लास कर रहे हो, लैपटॉप से कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोलो क्या होगा, हम बनाते हैं। तुमको हम होस्ट से हटाना होगा ना अब हमको। सर आपको होस्ट कर दिए सर। खत्म हो गया ना, ठीक है चलो बोलो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन देख लिया है ना?
क्या क्या यस प्रिंट सर। करना है? 10, 20, 30 अप टू 300, मतलब 10 का टेबल प्रिंट करना। तो बहुत इजी है जी। बोलो, बहुत तरीके से बन सकता है ये, दो ही स्टेटमेंट सर यूज। कोड आई इन रेंज लेके बनाए हैं सर। हाँ बोलो कैसे बनाए हो। इसमें कोडिंग वाला निकाल लेते हैं। फॉर, कैसे लिखो? फॉर फॉर आई आई इन इन रेंज। रेंज लिखे हो? यस सर। रेंज कहाँ से कहाँ तक? सर 10, देन 301, 301, देन 10। स्टेप्स 10 कर दिया तो बन गया, और क्या। अब प्रिंट कर देंगे। और भी तरीका से बन सकता है, बहुत तरीका है इसका बनाने का। प्रिंट आई कर देंगे तो यह प्रिंट हो जाएगा नहीं। हो गया प्रिंट। इसको एक लाइन में प्रिंट करना है तो भी हो सकता है, एंड लिख देंगे। ओहो, कोमा के बदले डॉट हो गया था। ठीक है, एक लाइन में प्रिंट हो गया तो बन गया ना। बहुत इजी था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है एक 105, 98, 91, ये किस तरह का है जी? 7 का डिफरेंस लगता है ना। 7 का डिफरेंस है तो बन सकता है आराम से। यस सर। वही उसी में खाली 7 का डिफरेंस कर देंगे और 106 तक कर देंगे। उल्टा इसको प्रिंट करना, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, फिर भी हम बना देते हैं, तुरंत बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं? ये जस्ट उल्टा प्रिंट करना है। तो कितना है मेरा लास्ट, कितना वैल्यू है? लास्ट वैल्यू है तुम्हारा 98 था ना। 105, 105 कोमा 8 तक जाना है ना, और -7। देखो ये होगा ना, तो हो जाना चाहिए 100, 105, 98, 91, 7 हो जाना चाहिए नहीं? हो गया ये। अच्छा 7 से एक ज़्यादा देना था ना, 8 देना था नहीं, 14 तक किया। तो 105 में 8 तक गया है ना, तो हमको 6 देना होगा ना ये। आ गया।
तो ये सब थोड़ा सा लॉजिक यूज करने से बन जाएगा।